Okay, so in last class we have seen oops ABAP program, and today we will see how we local class, and today we will see like how we can create global class. So the transaction is SE24 to create any class. So we can give any name, for example Z. It should start with Z. CL. ओके कल अपन ने ऐसी 38 में ही लिखा था ना उप्स Right, प्रोग्रामिंग right. That is local आज class we have created. Today we are class creating global class. That class we cannot call from other program, but this class we can call from any program. So like ओके form perform we were not called from other program, right? But function model we can call from any program, right? So something like that. So here when I click on create, so it will ask like description first. So for example, calculation project, anything we can give. And here we can create usual web class, exception class, persistent class, and test class. So this test class we are using for ABAP unit, if you know unit test. So this is very technical. So generally nowadays what industry is following like TDD. So that is nothing but a test driven development. So they are writing test case first and then they are writing a code, and that test case will test the code. So this is very you can say latest technology or latest approach which followed in industry. So Java was following it from very beginning, okay, but in ABAP only 1 or 2% companies are following this, and I have followed this. So we can create ओके these 4 type of class. So now we are creating ABAP class, okay. दिस इज व्हाट And इज दिस एक्सेप्शन एंड परसिस्टेंट so exception class is nothing but if we have to deal with error handling, we can create exception class. And this ओके persistent also, I'm not sure, I've not used, but let's see. So it is again one more type of class. This is no, this is something else. Okay, I will check this persistent. I have never used. So let's यूजुअल अबैप क्लास इज अ नॉर्मल वन normal class which is widely used, which we ओके have created as local. Okay, so now let's give this request. Okay, so here, so we have defined, so there's two parts. First we have to define and then we have to implement, right? If you remember our last program, let me open that program for you. So let me close this. So if you see here what we have done, so first we have provided definition. If you come here definition, so here we have declared our methods and data, right? And यस here we have implemented that. If you see this implementation, so it is same. So here we have to define and then we have to implement here. If you see this button, ओके ओके okay, so let me define one method. For example, I want to create some method, okay, and I have to choose label. So I want a static method or instance, so instance method which we can call through our object. And if I create a static method, that can be called from direct from class. So what is the difference in static and instance? So the instance method is nothing but, for example, अगर मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, आई कैन कॉल दिस मेथड फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट और मैं उसमें डिफरेंट वैल्यू पास करके डिफरेंट थिंग्स आई कैन परफॉर्म. बट स्टैटिक मेथड विल बी अ सिंगल, मतलब सिंगल रहेगा उसका, मल्टीपल इंस्टेंस वी कैन नॉट क्रिएट, एंड इट विल बी कॉल्ड फ्रॉम लाइक अभी हम कैसे कॉल कर रहे थे इसको, using, if you see, we are using through object, right? Any method. If you see here also, we have called method through object, right? So this is instance method which we come from object. But अगर अपने कोई static method बनाया, it will be called from class name itself. तो class name से अगर मैं दो ऑब्जेक्ट बनाऊं, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट चाइल्ड एंड ऑब्जेक्ट चाइल्ड 1, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट से मैं इसको कॉल कर सकता हूं.
अगर कोई डेटा है, मान लो उस डेटा में, जैसे ये डेटा है, तो इसमें अगर मैं ऑब्जेक्ट 1 से 30 असाइन करूं, ऑब्जेक्ट 2 से इसको 20 असाइन कर दूं, तो इस पब्लिक मेंबर की जो वैल्यू है 30 भी रहेगी और 20 भी रहेगी। समझ रहे हो? क्योंकि हमने दो इंस्टेंस बना दिए, तो इस इंस्टेंस के लिए 30 रहेगी और दूसरे इंस्टेंस के लिए 10 रहेगी या 20 रहेगी। ठीक है। अगर लेकिन अगर ये स्टैटिक है तो वो क्लास नेम से कॉल होगा, तो अगर मैंने उसको 30 असाइन कर दिया, फिर से मैं असाइन करूंगा तो वो राइट कर देगा। तो इसका मतलब है कि इसके लिए जितने भी इंस्टेंस हम बनाते हैं, तो जो भी इंस्टेंट मेथड या डेटा है, उस उतने टाइम उसकी मेमोरी लोकेट होती है। समझ रहे हो? जैसे मान लो एक मेथड है, हियर फॉर एग्जांपल वी हैव वन मेथड, मेथड 1 एंड मेथड 2। ठीक है। और कुछ मैंने डेटा भी डिफाइन किया है, फॉर एग्जांपल डेटा 1। ठीक है। अब अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है इसका, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए तीनों चीज के लिए मेमोरी लोकेट होगी। ऑब्जेक्ट 1 के लिए फॉर एग्जांपल, अब ऑब्जेक्ट 2 बनाया, तो इसके लिए भी इन तीनों की वैल्यू और मेमोरी साइन होगी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट 1 से डेटा 1 की वैल्यू सेट करूंगा और ऑब्जेक्ट 2 से उसको एक्सेस करूंगा, तो इसकी वैल्यू, अगर मान लो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने 10 डाली है, तो वो 10 ही रहेगी इसके लिए, ऑब्जेक्ट 2 के लिए, बल्कि इसके लिए चेंज हो जाएगी। अच्छा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैंने मान लो कोई स्टैटिक बना दिया, मैंने एक स्टैटिक डेटा बना दिया, स्टैटिक डेटा, ठीक है। अब स्टैटिक डेटा 2 है, अब इसमें मैं जो वैल्यू डालूंगा वही थ्रू आउट द प्रोग्राम रहेगी। अगर मैं इसको चेंज भी ओके। करूंगा, तो वो क्या करेगा कि मतलब इसको 10 को चेंज कर देगा, और मैं उसको क्लास नेम से ही एक्सेस कर पाऊंगा। अभिषेक फिर से बताना एक बार, स्टैटिक और वो दूसरा क्या था? देखो, अब एक स्टैटिक एक इंस्टेंस है, तो स्टैटिक मतलब, इंस्टेंस मतलब क्या है कि अगर हमने मान लो तीन चीज इंस्टेंस बनाई है, ठीक है। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट 1 बनाऊंगा, तो इन तीनों के लिए, ऑब्जेक्ट 1 के लिए मेमोरी लोकेट होगी। एक हम यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं ना, तो मैं सिंपल हो जाएगा। जैसे अभी हमने ये स्टैटिक बनाया था, राइट, सॉरी नॉन, मतलब ये हमने कुछ नहीं लिखा, मतलब ये स्टैटिक नहीं है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको सिंपल इंस्टेंस बनाया, तो इसका जो वैल्यू है 20 है। हम चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो हम इस चाइल्ड क्लास से उसको एक्सेस कर सकते हैं, चाइल्ड बरोबर। क्लास, और यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा राइट, ठीक है, और अगर मैं उसको प्रिंट कर दूंगा वैल्यू को, लेकिन ये प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि ये नंबर है, तो प्रिंट ना करके हम जस्ट रन टाइम पे देखते हैं। ठीक है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू, मतलब ये ले लूं, अगर चाइल्ड ऑब्जेक्ट और पब्लिक नंबर देखूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, पब्लिक नंबर, नंबर। ठीक है, इसमें अगर मैं 40 असाइन कर दूं फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, इनिशियल इसकी वैल्यू कुछ, इनिशियल इसकी वैल्यू 20 हमने डिफाइन करी है, अब ये उसको ओवरराइट कर देगा। और अगर मान लो मैंने एक सुपर ऑब्जेक्ट भी बना ओके। दिया, ठीक है, एक सुपर क्लास का बना दिया, और इस ऑब्जेक्ट से अगेन मैं क्या करूं, इसकी वैल्यू रीड करूं। ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक डेटा बना दूं, डेटा ए टाइप आई जस्ट, ठीक है, और इसकी वैल्यू में आई में असाइन करूं, फॉर एग्जांपल ए में, सॉरी, ए इक्वल्स टू दिस। ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कैसा भी, यहाँ ब्रेक पॉइंट लिख देता हूँ। अरे यार, सेमीकोलन लगाने की आदत। ठीक है। अभी मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, और फिर हम इसको डीबग करके देखते हैं। अभी ये अपने वो क्लास जनरेट हो रही उसका है, लेकिन मैं एक्टिवेट नहीं करूंगा उसको भी, जस्ट आई एम एक्टिवेटिंग दिस क्लास। अभी मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ, मुझे मैंने तो अपना वो टेस्ट करना है। देखो, अभी अगर मैं देखूं तो इसकी वैल्यू कितनी है, 20 है, क्योंकि हमने 20 डिफॉल्ट डाली है, बराबर। राइट। और अगर मैं सुपर ऑब्जेक्ट से भी देखूं इसकी वैल्यू, ऑब्जेक्ट सुपर से भी अगर इसकी वैल्यू देखूं मैं, ऑब्जेक्ट सुपर क्रिएट नहीं किया, सॉरी, अभी क्रिएट करना भूल गया मैं, ये लाइन रुको, अभी ये तो एरर दे देगा। क्रिएट ऑब्जेक्ट करना लिखना भूल गया मैं, 38।
अभी मैंने क्या किया है, डिफाइन किया लेकिन एक क्रिएट वाला इनेबल नहीं किया, ठीक है, तो डिफाइन भी करना है क्रिएट भी करना है। कुछ भी दे दो यहाँ पे, तो हमने कुछ वैलिडेशन डाला नहीं है, ठीक है। अभी देखो इसकी वैल्यू कितनी है 20, इसकी भी 20 है राइट, क्योंकि इनिशियल हमने 20 साइन करी है। कोई डाउट नहीं है राइट। बराबर। अब मैं क्या करूंगा, इसकी नहीं, वैल्यू चेंज करूंगा 40। तो इसने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट से पब्लिक नंबर को 40 असाइन किया है। तो अगर मैं इस वेरिएबल को इस ऑब्जेक्ट से कॉल करूंगा तो उसकी वैल्यू 40 मिलेगी, लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट से कॉल करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी 20, 20। क्योंकि अभी तक मैंने इस ऑब्जेक्ट से इसको चेंज नहीं किया है। समझ में आ रहा है, मतलब इसने क्या बराबर, किया, हाँ। इस ऑब्जेक्ट के लिए अलग मेमोरी बनाई है, इस ऑब्जेक्ट के लिए अलग मेमोरी बनाई है। तो मैं जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा उस मेथड और जो भी डेटा है उसके लिए उतनी मेमोरी क्रिएट होंगी। आ रहा समझ में। तो अब ओके। एक ही पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग ऑब्जेक्ट से अलग अलग मिल रही है, हमें मिल रही है। आया समझ में। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन हाँ। अगर मैं इसको स्टैटिक बना दूंगा और अगर मैं इसमें चेंज करूंगा तो जितनी भी जगह है वो उतनी जगह चेंज हो जाएगा, तो उसकी एक ही मेमोरी अच्छा। रहेगी, मतलब उस वेरिएबल की। ओके ओके ओके, अंडरस्टैंड, या। समझ रहे हो, तो उस मेमोरी में चेंज होगा तो जितनी भी जगह हम उसको एक्सेस करेंगे सब जगह चेंज हो जाएगी वो, अगर मैं ठीक स्टैटिक बना ठीक। दूंगा तो। ये उसमें डिफरेंस है, दैट्स ऑल, है ना। इसको फिट कर देता हूँ, मतलब स्टैटिक और इसमें मेन ये डिफरेंस है कि मेमोरी एलोकेशन का। स्टैटिक भी हमें कई बार बनानी पड़ती हैं चीजें बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट, है ना, और कई बार रिक्वायरमेंट। हमें नहीं बनानी पड़ती हैं। तो वो हमें देखना है किस केस में हमें चाहिए कि उसकी वैल्यू, मतलब हम जैसे हमें मान लो कोई काउंटर बनाना है ना, तो अब कोई सा भी ऑब्जेक्ट उस वेरिएबल को मतलब एक्सेस करे या कोई सा भी उसमें, तो हम उसको स्टैटिक बना देंगे तो वो काउंटर में से इंक्रीज होगा। अगर हम काउंटर ऐसा इंस्टेंस का बनाएंगे तो उस काउंटर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट का काउंटर अलग रहेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट का काउंटर की वैल्यू अलग रहेगी। समझ रहे हो, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें काउंटर इंक्रीमेंट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो हम उसको स्टैटिक बना सकते हैं। उसके बाद देखो इसमें विजिबिलिटीज की क्या रखना है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। अगर मैं इसको प्राइवेट या प्रोटेक्टेड बना दूंगा तो अपने उससे कॉल नहीं कर पाऊंगा राइट, कल नहीं, तो हाँ। इसको मैं पब्लिक नॉर्मली बनाऊंगा पब्लिक। और इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा सम फॉर एग्जांपल, ठीक है, या सम टू नंबर, एनीथिंग आई कैन गिव। तो ये हमने एक मेथड बना दिया, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो मुझे कोई डेटा डिक्लेयर करना है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने वहां पे किया लाइक पब्लिक नंबर, है ना, जस्ट आई एम सेविंग इट। उसको यहाँ पे मैं डेटा डिक्लेयर भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्या कर दूं, क्या कर दूं बताओ, मैसेज लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैसेज, इसका लेबल क्या रखना है अपन को, इंस्टेंस। और तीसरा रहता है कांस्टेंट। अगर हम, तो कांस्टेंट मतलब क्या हो गया कि उसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता, ना क्लास से चेंज कर, क्लास नेम के साथ चेंज कर सकता है, ना ऑब्जेक्ट नेम के साथ, ठीक है। तो वो हो गया कांस्टेंट। अभी मैं कांस्टेंट नहीं रखता हूँ और इसको ही मुझे पब्लिक बनाना है, इसको मैं पब्लिक बना सकता हूँ, ठीक है। टाइप क्या रखना है इसका मुझे, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग रखना है, और कुछ इनिशियल वैल्यू डालना है, कुछ डालना है, मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ कि मैसेज, कुछ भी डाल सकता हूँ, कुछ इनिशियल वैल्यू डालना है वो भी डाल सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं डाल रहा हूँ मैं। तो हमने सिंपल एक मेथड बनाया, ठीक है, और ये बनाया। अब मुझे इस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो कैसे कर सकता हूँ, आई कैन डबल क्लिक ऑन इट एंड इट विल ओपन। ठीक है, अभी इसमें कुछ इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग पैरामीटर नहीं असाइन करे, तो वो हम पहले असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मुझ में इसको पहले पैरामीटर डालना है, तो आई कैन कम क्लिक ऑन दैट, सो ये सम के अंदर चला गया एंड देन इसमें हम डाल सकते हैं पैरामीटर। तो फॉर एग्जांपल मुझे डालना है इन इंपोर्टिंग पैरामीटर आई ए, टाइप रखना है मुझे टाइप, तो इसका रखना है टाइप मुझे इंपोर्टिंग, ठीक है। तो ये 4 टाइप के पैरामीटर होते हैं। इंपोर्टिंग मतलब इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्टिंग मतलब एक्सपोर्ट करना है जो हमें, चेंजिंग मतलब कि हम जो वैल्यू पास करेंगे वही चेंज हो जाएगी, उसको ही हम चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट, और रिटर्निंग मतलब कि हमें कुछ अगर रिटर्न करना है तो।
तो इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग हमने देखा था, चेंजिंग भी हम देख सकते हैं, रिटर्निंग जनरली हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ये पास वैल्यू ऑप्शनल, अगर ये टिक कर दूंगा तो ये ओनली वैल्यू विल पास, अगर मैं टिक नहीं करूंगा तो वो क्या करेगा कि इसमें मैं कुछ चेंज करूंगा तो एक्चुअल उसमें चेंज कर देगा वो, समझ रहे हो? तो मैं ये पास वैल्यू एंड देन ये ऑप्शनल है पैरामीटर, तो ऑप्शनल नहीं बनाना है मान लो मुझे। अगर ऑप्शनल बनाऊंगा तो जब मैं ये मेथड कॉल करूंगा तो इसको पास करना ऑप्शनल रहेगा, समझ रहे हो? जैसे अपना फंक्शन मॉड्यूल में था सिमिलर, बराबर है ना? फिर इसका टाइप, और टाइप इसका क्या रखना है, फॉर एग्जांपल मुझे आई रखना है, कुछ डिफॉल्ट वैल्यू देना है तो मैं दे सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, मुझे अभी नहीं देना है। एंड देन आई कैन हैव आई बी, इसको भी इंपोर्टिंग बना देता हूँ, पास बाई वैल्यू एंड आई, एंड देन आई कैन क्रिएट आई सी, इसको मैं एक्सपोर्टिंग लिख देता हूँ, इसका भी टाइप आई, इसको पास बाई वैल्यू नहीं करता हूँ, ठीक है? हमने पैरामीटर बना दिए, अब मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन कर देता हूँ, सेव कर रहा हूँ, सेव में थोड़ा टाइम लेता है पता नहीं, ठीक है? अब मैं इम्प्लीमेंटेशन पे जाता हूँ, लेट्स गो बैक एंड डबल क्लिक हियर। अब इसका अगर मैं सिग्नेचर पर क्लिक करूंगा तो आई कैन सी ऑल द पैरामीटर्स, ठीक है? इसमें दो पैरामीटर है, तीन पैरामीटर है, दो इंपोर्टिंग है, एक एक्सपोर्टिंग है। तो मुझे क्या करना है अल्टीमेटली, आई सी, सॉरी आई सी इक्वल्स टू आई ए प्लस आई बी, यही करना है, राइट? सम है। ऐसे में बहुत सारे मेथड बना सकता हूँ, अगर मेरे कैलकुलेशन क्लासेस में मल्टीप्लीकेशन, फैक्टोरियल कुछ भी बना सकता हूँ, और कभी भी मुझे ऑपरेशन करना है तो आई कैन यूज दिस क्लास, समझ रहे हो? तो थ्रू आउट our program we can use this. Let's select all and activate. So it is very simple to create a global class, ठीक है? It is activated now. If I go back and check, this is active and I have only one method. I can have multiple methods here, public, private and protected, every type of method we can create. But हमने कल देखा ही था, so just how we can call this, for उसके लिए जस्ट हम एक नया प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं क्विकली। फॉर एग्जांपल जी GCL अंडरस्कोर टेस्ट कर देते हैं, GCL pro underscore CL underscore test, any name we can give. Executable program we can create, save it, ठीक है? सिंपली हम यहाँ से दो इनपुट ले लेते हैं पैरामीटर्स। अभिषेक वो फॉन्ट बढ़ा दोगे, फॉन्ट साइज? PA type, yes, thank you. I and PB type I, हम दो इनपुट ले लेते हैं and then we can call our function, right? So start of selection and then we can call. So how we can call that function? Sorry, we can click here and we have to call method, right? So where it is above object pattern. So first of all we have to create, we have to declare that for example class, sorry, data, we have to create instance, right? Or object. So obj underscore calculate, any name I can give, type ref2 and the what was our class name? Class name is this, right? इसका हमने reference बना लिया and with the reference of this we can call now. So we can go here in pattern, okay,
and where it is ABAP object pattern. Okay, so call method, right? So what is our instance name? This. What is our class name? This, right? And what is our method name? So what is our sum, right? Even we can create our instance here. Okay. Okay. And before this, we have to create this, right? So for example, sorry, this it has created here by mistake. Cursor position was not correct. So let me copy this and paste here. Okay. Okay, no issue. So before this, we have to create object. Which object we have to create? This one, right? ये ऑब्जेक्ट हम वहां से भी क्रिएट कर सकते थे पैटर्न से, हमने अभी मैनुअल लिख दिया. And then I have to pass this value, right? So IA, for example, I want to pass P underscore A, and IA, IB, I want to pass P underscore B. And exporting is what? Here I can write, for example, output, and this output data we can define. So data output type I. Okay. And here we can put the breakpoint and see what will be, how it is working. So this is how we can call any method. This is very simple, right? Let's put the breakpoint. So importing parameter full stop is on the wrong place, I think. End of statement. Where? This one? No, this is correct. I mean, we can put after this or next line. So it is fine. Otherwise, we will get error in when we activating the program itself. Okay. So for example, 12 and 2 I am passing, I am executing this, and it has stopped here. So in P underscore we have 12 and this is as of now 0. So if I do F5, it will get inside this. Now you can see this is passing the value, and if I come here in output, we got 14. So this is how, this is very simple, right? And how many minutes are remaining? I think we need to join another meeting, but yeah. So this is how we can call or create any global class. Now we will see a big example, like we will call a big standard class and methods of that class. Okay. And we will display our ALV using OOPS concept. Okay. So we will, earlier we have called function module, and now we will call like class and methods to display our ALV. Yes. Okay. So let's connect another meeting, and then we will do that. Okay. Thank you. Okay. Thank you.